In previous video, we have taken height and distance in trigonometry. We have solved 2 to 3 questions in our previous videos. Let's take question number 4 from R.S. Agarwal. Your statement is given. आपकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है. लेट्स रीड इट. सबसे पहले कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि 4 स्टेप्स आपको यहाँ लेने हैं. फर्स्ट स्टेप है रीडिंग योर स्टेटमेंट केयरफुली. सेकंड स्टेप है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू हैव टू ड्रॉ ए फिगर. आपको स्टेटमेंट को अपने फिगर में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जब कन्वर्ट हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको ये सॉल्व करनी है. सो लेट्स टेक the angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find height of the tower. What do you mean by complementary angles? 2 angles whose sum is 90. दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो are called complementary angles. We are given a tower and its angle of elevation from 2 different points. Let's draw our figure. Be careful that it will be a vertical tower. A and B points represent, this AB line represents height of tower. And this is the line joining foot of tower. This is a line on the ground. The angle of elevation of the top of tower, यानी इसको देखा जाएगा यहाँ 2 पॉइंट्स है. From the 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from base of tower. There are 2 points. One point is 5 meter away and other is 20 meter away from the top tower. I am taking point C and D. This C is 5 meter away from base of tower and this D is 20 meter away from base of tower. बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि वो यहाँ से 20 मीटर लेते हैं जबकि ये बेस ऑफ टावर से डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर. One more thing is there. जब एंगल ऑफ एलिवेशन इन 2 पॉइंट से टॉप ऑफ टावर का बनता है तो ये दोनों ही एंगल्स का सम 90 डिग्री है. यानी यदि ये एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, या आप कोई और दूसरा एंगल एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं. और यहां है दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. This is our question. Now look at once again the angle of elevation of top of tower from 2 different points at a distance of 520 meter. These 2 points are 5 meter away from base. This point is 5 meter away from base of tower and this point is 20 meter away from base of tower. From these 2 points, the angle of elevation of the top of tower are found to be supplementary. Means यदि ये 50 का है तो ये 40 का है, ये 60 का है तो 30 का है, ये आपके पास 55 का है तो ये 35 का है. कोई स्टैंडर्ड एंगल्स यहाँ नहीं है. आपको फाइंड हाइट ऑफ टावर, फाइंड हाइट ऑफ द tower.
आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन आपका है, रिप्रेजेंटेशन हमने बहुत बढ़िया सा दे दिया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। AB is the height of tower, C and D are 2 points on the line joining base of tower such that BC is equal to 5 cm and BD is equal to 20 cm. So simply I am solving it. I will take triangle ABC. In triangle ABC, AB upon BC, AB upon BC. Let this AB is h net height. AB upon BC is equal to, look at, this is opposite side of theta and this is adjacent side of theta, so it is tangent theta. Now AB upon BC, AB is given h, we have taken it as h meter high and BC is 5 meter, so it will be equal to tangent theta. This is your relation 1. अभी हम थीटा की वैल्यू नहीं रख पाएंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू नहीं रख पाएंगे। अब दूसरे ट्राइंगल में जब हम आते हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, AB upon BD is equal to, AB upon BD is equal to tangent 90 minus theta. Tangent 90 minus theta. So AB is again h, BD is 20. एक रिलेशन मैं आपको बता दूं, क्योंकि 90 माइनस थीटा रिलेशन मैंने पिछले वीडियोज में नहीं कराया, क्योंकि इस साल के लिए 90 माइनस थीटा रिलेशंस आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। सो हो सकता है कोई क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पूछा जाए, तो यहाँ एक आपके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए कि किसी ट्रायंगल में, ध्यान देना मैं थोड़ा सा रफ करवा दूं, यदि राइट ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है तो ये फिर 90 माइनस थीटा है। इस ट्रायंगल ABC में यदि हम टेंजेंट थीटा निकालते हैं तो AB अपॉन BC है। यदि हम कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो ध्यान दें, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो इट विल बी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, अगेन इट विल बी AB अपॉन BC। सो यदि आप यहां समझ गए हो कि AB अपॉन BC ही दोनों हैं, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा होती है, या कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू टेंजेंट थीटा होती है। सो यूजिंग दिस रिलेशन टेंजेंट 90 माइनस थीटा, यदि आप यहाँ टेंजेंट की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर कोटेंजेंट की वैल्यू के बराबर होगी। सो दिस टेंजेंट 90 माइनस थीटा, यहाँ एक दूसरे का रेसिप्रोकल रेशियो होता है, मैं लिख दूं टेंजेंट थीटा की वैल्यू कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा होती है और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू टेंजेंट 90 माइनस थीटा होती है। इसका मैं यूज करूंगा, मैं टेंजेंट 90 माइनस थीटा को कोटेंजेंट थीटा लिखूंगा। ये आपका रफ वर्क था कुछ समझाने के लिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपके टेक्स्ट में आपकी बार सिलेबस में नहीं है, इस वजह से ये डिटेल में नहीं कराया गया। सो आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कोटेंजेंट थीटा, एंड वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट थीटा इज, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, reciprocal of tangent theta. So h upon 20 will be equal to
1/tan थीटा। दिस इज योर रिलेशन टू। समझने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कोई दिक्कत मत मानिएगा। अभी यहाँ इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 में यदि हम टेंजेंट थीटा और 1/tan थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS 1 आ जाएगा। हमारे पास RHS 1 आ जाएगा तो LHS बचेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं LHS को LHS से और RHS को RHS से। सो h/5 मल्टीप्लाई बाय h/20 इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/tan थीटा। You will get h square upon 100 is equal to 1 or h square is equal to 100. Now take square root of it. H will be equal to 10 meter. It will be your final answer. So यदि ये आपको समझ आया है तो मैं इसी तरह के 1-2 क्वेश्चंस का अभ्यास और करवा दूं। NCERT में इस तरह का क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में दिया गया है। यहाँ 5 और 20 की जगह वहाँ A और B दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि h की वैल्यू, हाइट की वैल्यू √AB है। मैं वो क्वेश्चन भी अभी साथ साथ ही ले रहा हूँ आपका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपको दिया जा रहा है। Let's take our question number 5H. In last question, I have taken this distance 5 and 20. अब की बात आपका NCERT का एक क्वेश्चन है जिसमें 5 और 20 की बजाय न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, वहां पर वेरिएबल्स दिए गए हैं डिस्टेंस में। सो यहाँ NCERT के क्वेश्चन को रेफर करता हूं मैं। The angle of elevation of top of a tower from the 2 points at a distance of A meter and B meter from the base of tower are in the same straight line with it are complementary. Prove that height of tower is √AB. यहाँ पे आप देखिए ध्यान से √AB ही था। A की जगह 5 था, B की जगह 20 था, 20 कम 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 आया था। सो यहाँ प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर इज √AB. Let's represent your statement into figure. Angle of elevation of top of tower. This is tower AB with height h meter. These two are point of observations from where we see the top of tower, and the angle of elevations are complementary. दोनों एंगल्स का लोड 90 डिग्री है। C is A meter away from base of tower, D is B meter away from base of tower. So यहाँ तो हाइट 5 और 20 दी गई थी, अब की बार यहाँ वेरिएबल दी हुई है। इस वेरिएबल से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। सो कोशिश करिए कि 5 और 20 का यदि आपको क्वेश्चन आया था तो मैंने 5 को A से रिप्लेस किया है और 20 को B से रिप्लेस किया है। सो यहाँ फिर हम आते हैं, सॉल्यूशन सेम है बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा अल्टरेशन इसमें किया है, कोई अंतर नहीं किया है। इन ट्रायंगल ABC, इन दिस ट्रायंगल ABC, this is our angle theta, this is opposite side, this is adjacent side. So h/A is equal to tangent theta. AB/BC is equal to tangent theta. This is ratio of opposite to adjacent. It is tangent theta. Value of AB is h and value of BC is A. So h/A is equal to tangent theta. Relation 1. In triangle ABD, in the same way as previous question, in triangle ABD, ABD में आपके पास क्या है? AB/BD. AB/BD is the same ratio of tangent
and now angle is 90 minus theta. So 90 minus theta, मैंने पिछले उसमें बताया था कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू कोटेंजेंट थीटा के बराबर होती है और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा है। सो AB को रिप्लेस किया गया h से, BD को रिप्लेस किया गया D से, सो h अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। नाउ फाइनली h अपॉन B हैज बिकम 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। सो मल्टीप्लाइंग दीस टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो in LHS you will get h upon a multiplied by h upon b, h upon a multiplied by h upon b, tangent theta multiplied by 1 upon tangent theta. This value will become 1. So यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से h square is equal to ab हो जाएगा, h square is equal to ab and h will be equal to under root ab. So इस क्वेश्चन को आपकी डिफरेंट बुक्स में कहीं ये 4 और 9 डिस्टेंस दिया जाता है, कहीं 5 और 20 डिस्टेंस दिया जाता है, कहीं A और B डिस्टेंस दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी चीज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ये वैल्यू बदलनी है। यदि आप इन दो स्टेप्स में कंफ्यूज नहीं होते हैं तो ये क्वेश्चंस बेहद इजी होते हैं। 2 बार 3 बार इसका अभ्यास करिएगा, यू कैन डू इट। So let's take next question. The angle of elevation of top of tower at a distance of 120 meter away from a point on the ground is 45 degree. So पहले यहीं तक की इंफॉर्मेशन यूज करिएगा और अपनी फिगर ड्रॉ करिए। The angle of elevation of the top of tower at a distance of 120 meter away from point on the ground is 45 degree. This is your tower. In 45 degree, the height is equal to distance on graph. ये दोनों साइड आपस में बराबर रखनी है। यहाँ इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि ये जितनी हाइट है ऑलमोस्ट सेम हाइट होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल में ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, तब आपका ऐसा लगेगा कि हाँ 45 डिग्री का एंगल है। This is height of tower AB. This is point C. I am taking height of tower H. क्योंकि ऊपर भी एक फ्लेक्स टॉप मुझे और दिखाना है तो मैं ये थोड़ा सा छोटा कर दूं। Height of tower is AB and this is our point C and this is angle of elevation 45 degree. The angle of elevation of top of tower from a point on the ground, this point is at a distance of 120 meter away. So this is given 120 meter and this angle is given 45 degree. So this angle of elevation is 45 degree. यहाँ मैं बीच में लिख देता हूँ ये एंगल 45 डिग्री का। नेक्स्ट स्टेप देखें। If angle of elevation of top of a flat top fixed on the top of tower at point A is 60 degree. Now there is one more step. There is a flat top on the top of tower. यहाँ पर कोई झंडा बंधा हुआ है इस टॉप, इसके टॉप के ऊपर, टावर के टॉप के ऊपर, और ये जैसे आप झंडा है तो झंडे का डंडा फ्लैग स्टॉप है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन I have to take this side. Point A is given here. From point A, so I will take this point A here. Point A on the ground. So I will take here C, and C is the height of flag stop.
CD is the height of flagstaff. So यहाँ अब A से यदि top of flagstaff को देखा जाए, this angle is 60 डिग्री. ये एंगल आपका 60 डिग्री का बनता है. यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल है 60 डिग्री. Find height of the flagstaff. तो यहाँ आपने करना क्या है? BC हाइट को हम स्मॉल h मानते हैं. हाइट ऑफ टावर इज h, स्मॉल h, and I will take height of tower plus flagstaff h, कैपिटल H. ये जो टोटल हाइट है ये है कैपिटल H मीटर. सेम यूनिट हम रखेंगे. एक बार फिर मैं आपको समझा दूं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट ए डिस्टेंस 120 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट A. From point A, the angle of elevation of top of tower is 45 degree, and this angle, this point A is 120 meter away from base of tower, and there is a flagstaff on the top of tower. If we see the top of flagstaff from point A, the angle of elevation becomes 60 degree. So find height of the flagstaff. आपको सिर्फ ये सीधी हाइट निकालनी है. Now let's take solution. सबसे पहले सिंपली आपको दो इक्वेशंस लेने हैं. शुरुआत में आप ट्रायंगल BCA में ABC में काम कर सकते हैं. 120 गिवन है, H आप निकाल सकते हैं इस एंगल 45 की मदद से. बेहद सिंपल स्टेप है. फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC BC upon AB is equal to tangent 45. ध्यान दें ABC में एंगल A है 45 डिग्री का. BC upon AB is tangent 45. Value of tangent 45 is 1 upon 1. BC is H, small h. AB is 120, so by cross multiply we get H is equal to 120 मीटर. ध्यान दें यदि ट्रायंगल ABC में यहाँ 45 डिग्री का एंगल था तो मैंने बताया था कि दोनों साइड आपस में बराबर होंगी. H is equal to BC will be equal to AB. क्योंकि 45 डिग्री के एंगल में यदि यहाँ 45 का था यहाँ 90 का था, ये 45 डिग्री का एंगल रह जाएगा. Then sides of the equal angles are equal. So H will be equal to this length AB. So यहाँ बेहद आसान सा काम है आपके पास. अब हमें आना है ट्रायंगल ABD में. इन ट्रायंगल ABD BD upon AB, BD upon AB is equal to tangent 60. Value of tangent 60 is under root 3. I am taking under root 3 upon 1. BD is given capital H. AB is given 120. So capital H, value of capital H is equal to 120 under root 3. So value of under root 3 is given. So multiply this 120 by 1.732. So H will be equal to 120 multiplied by 1.732. So multiply कर दीजिएगा, जीरो फिक्स बाद में कर लीजिए. 12 टू जा 40, 24, 12 3 जा 36, 38 हो गया, 3 कैरी 84 and 3 87, 12 1 जा 12 and 8 20. So I multiply it again. 0, 12 2 जा 24, carry 2, 12 3 जा 36 and 2 38, 3 carry, 12 7 जा 84 plus 3 87, 12 1 जा 12 and 8 20. So fix 3 places of decimal from here. It will be 2.7.8
0.84 meter. So this is height of tower plus flagstaff. ये हाइट ऑफ टावर और फ्लैगस्टाफ की हाइट दोनों इकट्ठी है। सो हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ आपको निकालनी है। हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ आपकी आ जाएगी you have to subtract 120 from 207.84. You will get 0.84. यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, इक्वल लाइक डेसिमल्स बना लें 7 and 8. 87.84 will be the height of flagstaff in meter. So this is your solution. This is another question from your book. It is from NCERT as well. NCERT की बुक में भी ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। इस स्टेटमेंट में बहुत सावधानी से पढ़िएगा, कई बार बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है। The two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. So let's use this information to draw a figure. This is our road, which is 80 meter wide, and two poles are standing on it on either side of it. दो पोल इक्वल हाइट के हैं, ध्यान देना। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यहां मैं हाइट इनकी मेजर कर लेता हूं, उसी तरह से सेम हाइट रखते हैं। फिगर बनाएं तो आप भी स्केल से एग्जैक्ट फिगर की कोशिश करिएगा। सो दीज आर द टू पोल्स, दिस पोल इज AB एंड दिस इज CD. These are the two poles. From a point on the ground, and the road is 80 meter wide. The width of road is 80 meter. So यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है आपका, ये 80 मीटर दिया हुआ है। So हमने यहां तक two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 80 meter wide. There is a road BC which is 80 meter wide. Two poles AB and CD are standing on it on either side of the road. दोनों अपोजिट किनारों के ऊपर खड़े हैं, हाइट इक्वल है। तो मैं यहाँ इन दोनों की हाइट h मीटर मान लेता हूँ, तो ये हाइट भी h मीटर। अब आगे बढ़ें। फ्रॉम ए पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड, angles of elevation of top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. So there is a point P here. There is a point P in between these two poles on the road, and from this P, angle of elevation of one pole is 60 degree and another pole is 30 degree. So एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है यहाँ से, और एक का 60 डिग्री बनता है। So मैं ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ लिख दूँ। This is your angle of elevation 60 degree, and another angle of elevation is 30 degree. अब यहाँ आपने इस 80 का यूज करना है। We need to separate distances on the road. Let BP is equal to x. यदि BP x मीटर
सम दोनों का 80 है तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास रह जाएगा 80 माइनस एक्स। PC डिस्टेंस विल बी 80 माइनस एक्स। लेट्स सॉल्व नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABP सबसे पहले आपने आना है सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABP में AB अपॉन BP, AB upon BP, I am taking it here, AB upon BP is equal to tangent 60. AB is H, BP is X, this is under root 3 upon 1. This is opposite upon adjacent. So you can get a relation here, not value. आपको यहाँ h और x में एक रिलेशन मिलेगा, वो ले लीजिए। h is equal to under root 3x. It will be your equation 1. So we have taken our information from this triangle ABP. Now let's take triangle DCP or CDP. In triangle CDP, CD upon CD is equal to tangent 30. Value of tangent 30 is 1 upon under root 3 and CD is H. Value of CD is H and CP is 80 minus X. I am writing it once again, शायद क्लियर ना दिखाई दे। सो CD की वैल्यू है H, CP की वैल्यू है 80 माइनस X, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. सो यू कैन मल्टीप्लाई हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, अंडर रूट 3H इज इक्वल टू 80 minus X. This is your equation 2. Now we have to solve these two equations 1 and 2 by substitution method or by any other method. चाहो जो आप किसी तरह से सॉल्व करिएगा, जो तरीका आपको आता है, मैं जो कह रहा हूं उस तरह से करें तो उस तरह से कर लीजिए। अब हम यूजिंग आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन अंडर रूट 3H under root 3 into H is equal to 80 minus X. Now look at value of H is given under root 3X. Value of H is given, this is value of H and this is value of H here. So I am substituting H here. So it will be under root 3, value of H is again under root 3X. 80 minus X. So multiplication of these two under root 3 will be 3X plus X is equal to 80 and 4X will be 80, X is equal to 20. So now you can find out the distance of poles from point P. Distance of first pole from point P is 20 meter and distance of second pole from this point P is 60 meter. So distances कर रहा हूं मैं, distances of poles from P, from point P is equal to ये 20 मीटर और 80 में से घटा दीजिए 20 को 60 मीटर। दो आंसर तो आपके पास आ गए। डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम पॉइंट P और हमारे पास रह गया फाइंड हाइट ऑफ पोल। सो हाइट ऑफ पोल विल बी इक्वल टू H इज इक्वल टू अंडर रूट 3X. H इज
इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, दोनों ही कोन की इक्वल है, सो कोन्स लिख देता हूं। हाइट ऑफ कोन्स इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय x, वैल्यू ऑफ x is 20, so √3 multiplied by 20. Sometimes value of √3 is given. यदि यहाँ √3 की वैल्यू दे दी जाती है, √3 is equal to 1.732, so आप इसे मल्टीप्लाई कर देते 20 से, it will be 1.732 multiplied by 20. इसलिए प्रोडक्ट कर दीजिए 0, 4, 6, 34. There are 3 decimal places, so use your decimal place here. It will be 34.64 meter. It will be your final answer. अब आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस अपने सिंपली सबसे पहले मैंने क्यों बताया, हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आने हैं। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको इसे इंटरप्रेट करना है, एक तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको देना है। We have to represent this statement into pictorial representation. In this pictorial representation, I have to take trigonometric ratios using different triangles, and in some of cases we have to make equations. इक्वेशंस बनाइए और इक्वेशंस में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और फिर फाइनल आंसर आपके पास आएगा आपके x की और h की वैल्यू निकालना। सो यहां देखें इस तरह के क्वेश्चंस, इस रेंज का क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर पे कई बार आ चुका और 4 मार्क्स में आता है। सो ध्यान से मार्किंग में देखें, 1 मार्क है इसका रिप्रेजेंट करना, 1 मार्क है इक्वेशन 1 बनाना, 1 मार्क है इक्वेशन 2 बनाना, और 1 मार्क है फिर डिजायर्ड आंसर, उनको सॉल्व करके डिजायर्ड आंसर निकालना। सो यहाँ यदि आप इसको पढ़कर फिगर भी बनाते हैं तो भी कुछ ना कुछ स्कोरिंग आपको मिलेगी। किसी एक ट्रायंगल के रिलेशन यदि आप लिख रहे हैं तो भी आपको स्कोरिंग मिलेगी इन इक्वेशंस में। सो कोशिश करिए कि आंसर पूरा नहीं निकलता तो कम से कम इसको सॉल्यूशन की